تاکہ پڑھنے والے کو بھی شوق جاگے، پھر دوسرے کے اندر بھی طلب پیدا ہو کہ میں بھی اسی طرح پڑھوں۔ انعامات اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ انعامات کے بعد شوق جاگتا ہے بچوں کے اندر۔ تو اسی طریقے سے جب نبی کی محبت دلوں میں ہوگی تو جب نبی کا کلام پڑھا جائے گا تو پھر آدمی تو جان تو کیا مال سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ جان مانگو تو جان دے دے، مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دے۔ تو یہی چیز ہے، محبت دل میں ہونی چاہیے، باقی سارا کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ محبت رہے گی، جب بھی نبی کا نام آئے گا جھوم رہے گا، درود کے نغمے اپنے آپ زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے کسی دن، تو اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے جب تک اس سے زیادہ کوئی نہ پڑھے۔ قیامت کے دن جو 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے قبر سے اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ اب دنیا میں بھی یہ چیز دیکھا گیا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو دنیا میں ہی اس کے چہرے پر نورانیت دکھتی ہے، عجیب سی، الگ سی، کہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کسی نیک آدمی کا چہرہ ہے۔ درود شریف کی بہت سے فضائل ہیں، بہت ہی بابرکت ہے درود شریف، اور درود شریف کا پڑھنے والا بھی نبی پر جو 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 مرتبہ نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کے یہاں قاعدہ ہے 1 کا بدلہ 10، تو 1 کا بدلہ 10 کا مطلب ہوا 100 مرتبہ نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے جب بھی نبی کا نام آئے تو درود پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سب سے بڑا فقیر اور کنجوس وہ ہے کہ جب میرا نام آیا اس پر درود نہ پڑھے۔ تمام آدمی اسی لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو اللہ کی حمد ہونی چاہیے، حامدا و مصلیا و مسلما، اور اس کے بعد درود شریف ہونی چاہیے، اللہم صلی وسلم۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، حدیث ہے اللہ کے نبی کی کہ موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتا ہے، اور دنیا میں کوئی جاندار جس کے اندر جان ہے ابھی تک ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی موت نہ ہو۔ اسی لیے قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز مٹنے والی ہے، ہر چیز نیست و نابود ہو جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف ایک پروردگار کی ہے، ایک اللہ کی ہے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو رزاق ہے، جو قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر جس کی قدرت ہے، ہر چیز کو سننے والا، جاننے والا ہے۔ ہمارا اور آپ کا سارے جہاں کا خالق و پروردگار ہے، صرف اس کی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی کوئی باقی رہنے والا نہیں۔ کل جو کرنا ہے آخری موت ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دنیا امتحان دہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کے لیے ہم آپ بھیجے گئے ہیں۔
यहाँ हम तो चंद दिनों के लिए है, फिर हमें अपने मकाम की तरफ जाना है, अपने आखिरी घर की तरफ जाना है। हम लोग क्या है, वारिस है जन्नत के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कितने अंबिया किराम यहाँ आए, जिसकी नस्लों में पुश्तों में हक है और अल्लाह के नबी हैं। सबसे पहले जो दुनिया में इंसान आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो उसी जन्नत से आए जिसमें हम जाने के मुतमन्नी और मुंतज़िर बैठे हैं। जन्नत में फरमाया कि जन्नतियों में जब 120 सफ लगाए जाएंगे कि 120 सफ जो होंगे वो जन्नत में जाने वाले होंगे। फरमाया उम्मत मुहम्मदिया के 80 सफ होंगे और बाकी उम्मत के 40 सफ होंगे। पता ये चला कि हम नबी की उम्मत में है, हमारा मकाम बुलंद है, हमारा मर्तबा बुलंद है, और ये नजदीक इस वजह से कि हमारे हबीब का मर्तबा बुलंद है अल्लाह के नजदीक। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में नहीं जाएंगे, कोई नबी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और जब तक उम्मत मुहम्मदिया जन्नत में नहीं जाएगी, कोई उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। तो ये मकाम है हमारा, ये मर्तबा है। इसीलिए तो सारे नबी की उम्मत मिलाकर 40 सफ होती है और उम्मत मुहम्मदिया 80 सफ। बताया ये कि जितने भी अंबिया आए उसको बेटी वाला हिस्सा मिला है और बेटे वाला हिस्सा उम्मत मुहम्मदिया को दिया गया है। बाप मर जाता है तो ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत विरासत तकसीम होती है। बेटी को जितना मिलेगा उसका डबल लड़के को मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को बेटे वाला हिस्सा अता फरमाया और बेटी वाला हिस्सा दूसरी उम्मतों को दिया। डबल दिया, डबल लोग जन्नत में जा रहे हैं औरों के मुकाबले में और उम्मत के मुकाबले में। तो हम और आप बड़े खुशनसीबों में से हैं कि अल्लाह ने बिन मांगे बिन दुआ किए हमें नबी के उम्मत में भेज दिया। हमने ये नहीं कहा था ऐ परवरदिगार आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा किया। अल्लाह ने अपनी चाहत से अपनी मर्जी से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। हमें ईमान वाले घरों में पैदा किया। हमने कोई ख्वाहिश नहीं की थी ए अल्लाह मेरे कान ऐसे बना देना, मेरे नाक ऐसे बना देना, मेरी अक्ल ऐसे देना, मेरे शक्ल सूरत ऐसा देना, मुझे फला मोहल्ले फला गांव में पैदा करना, फला कबीले फला घर में पैदा करना। और इस तरीके से जो भी चीज अपने जिस्म जुस्सा में है मौजूद, किसी चीज की हमने फरमाइश नहीं की थी। परवरदिगार आलम ने खुद सारी चीजें अता की है। तो पता ये चला कि परवरदिगार आलम ने तमाम चीजें जब हमें अता किया, खुद कुरान करीम में फरमा दिया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। इंसान को बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया गया, बेहतरीन शक्ल सूरत में ढाल दिया मैंने। तो अल्लाह का हम का एहसान है कि बिन मांगे सारी चीजें अता कर दी, वो चीजें जिससे अल्लाह हमारा राजी हो। अब हमें इख्तियार दिया है कि इस दुनिया में जब मैंने तुम्हें भेजा है तो तुम्हारे अंदर एक इख्तियार है। फरिश्तों वाली सिफत नहीं है कि जो फरिश्ते को खाने की नहीं जरूरत नहीं पड़ती, पीने की जरूरत नहीं पड़ती, ओढ़ने बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती, बाल बच्चों की परवरिश की जरूरत नहीं पड़ती, वो इबादत में लगे होते हैं। फरमाया ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है, वो गुनाह नहीं कर सकते, लेकिन फरमाया तुम्हें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा किया है, तुम्हें मैंने मुसलमान बनाया है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी सोच के मुताबिक है, अपने फिरासत हमने तुम्हें दिया है, अब तुम अच्छा करो या बुरा करो। हमारे पास जब आओगे तब पता चलेगा कि तुमने किस तरीके से अमल किया है। अच्छे अमल करके फरिश्ते से आला मकाम पा सकते हो, बुरा अमल करके शैतान से भी नीचे ले जा सकते हो। तो हम और आप नबी के उम्मत में हैं। इस दुनिया में हम चाहे तो अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारे जो रब चाही जिंदगी हो, जिससे हमारा महबूब अल्लाह का नबी और अल्लाह खुश हो, वो काम हम करें या दुनिया को खुश करने वाले हम काम करें। यह हमारे और आपके इख्तियार में है। हम चाहे तो अपना मकाम मर्तबा अल्लाह के नजदीक फरिश्ते से ऊपर ले जा सकते हैं और चाहे तो नीचे गिरा सकते हैं। यह हमारे इख्तियार में है। इसलिए हमें चाहिए कि वो अमल करें
جس سے ہمارا مالک خالق خوش ہو جائے، خوش ہو جائے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک درویش کے پاس ایک شخص پہنچتا ہے اور درویش سے کہتا ہے کہ میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ملیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ پہلے کے لوگ آدھی زندگی اللہ کی تلاش میں گزار دیتے تھے، جنگلوں بیابانوں میں زندگی گزارتے تھے، گھروں سے نکل جاتے تھے۔ فرمایا کہ وہ تو زمانہ ہے، لیکن تم اگر چاہتے ہو اللہ سے ملنا تو ہمارے حبیب نے بتلایا، ہمارے نبی نے بتلایا کہ اللہ سے ملنے کا راستہ انہی گلی محلوں سے ہے، انہی بازاروں سے ہے، انہی مکانوں سے ہے، انہی دکانوں سے ہے، انہی بال بچوں کی پرورش سے ہے۔ اسی طریقے سے تم اللہ تک پہنچو گے۔ میں نبی بنایا گیا ہوں، میرے بھی بال بچے ہیں، میں بھی زندگی تمہارے ساتھ گزار رہا ہوں، یہی کھاتے پیتے بھی، بس یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے نبی کے منشا کے مطابق کیا جائے، اللہ تک پہنچ سکتے۔ فرمایا راستے کٹھن ہے، راستے دشوار ہیں، تم پہنچ سکتے ہو لیکن تم پہنچو گے جب تم چاہیے زندگی گزارو گے۔ ایک تمہارے من کی چاہت ہے، ایک تمہارے رب کی چاہت ہے، تمہارا من کرے گا، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، بستر گرم ہے، بستر سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا، رب کہتا ہے اٹھو، اور تمہارا من کر رہا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے میں وضو نہ کروں، ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کروں، رب کہہ رہا ہے کرو غسل، کرو وضو، اٹھ جاؤ اس رات میں ٹھنڈی کے، اور اٹھ کر عبادت کرو، اور میرے سامنے گناہ نہ کرو، تہجد کی نماز پڑھو، اس وقت میں قریب ہوتا ہوں بندے سے، بندہ جو مانگے گا نہیں ملے گا، اور جب بندہ اس وقت اٹھتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے تنہائی کی رات میں جب ساری دنیا سو رہی ہے، پورے محلے والے سو رہے ہیں، اس کے گھر کے افراد سو رہے ہیں، یہ اٹھ کر میرے سامنے گڑگڑا رہا ہے، رو رہا ہے، مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے، اور اللہ تعالی عالم اس وقت کو خوش ہو کر مرتبہ بلند فرماتے ہیں۔ اگر تمہاری چاہت ہے تو تم گرم بستر سے نہ اٹھو، ہو سکتا ہے تمہاری چاہت یہ کہتی ہو کہ چلچلاتی دھوپ ہے، چلچلاتی گرمیاں ہیں، اس وقت مسجد جانے میں دشواری ہو رہی ہو، لیکن رب کہہ رہا ہے کہ اس وقت تم مسجد آ جاؤ گے تو تم مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤ گے۔ بندہ اگر اٹھ کر اللہ کی مان کر مسجد کی طرف چلا جاتا ہے، چلچلاتی دھوپ کو نہیں دیکھتا، بارش کو نہیں دیکھتا، کسی خوف و ڈر کو نہیں دیکھتا، دنیا کے جھمیلوں کو نہیں دیکھتا، دکان پر موجود ہے اور گاہک موجود ہے، اسے لگتا ہے اگر میں چلا گیا تو عقلی طور پر اور دنیاوی طور پر کچھ نہ گھاٹا ہو جائے گا، کچھ نفع آنے والا غائب ہو جائے گا، لیکن اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے، وہ دروازے کو بند کرتا ہے، دکان کے شٹر کو گراتا ہے، اور پروردگار نے منادی کی طرف لپک کر جاتا ہے، مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ اب جو عطیہ اللہ نے دیا ہے نماز کے بعد اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ تم نے اپنی مرضی چھوڑ کر میری مرضی کے مطابق عمل کیا ہے، تمہارے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، تمہیں آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ تو یہ دنیا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو چھوڑ جانا ہے، یہ چند دن کی دنیا ہے، آزمائشوں کا گھر ہے، اس راستے پر چل کر اللہ ملتے ہیں، اللہ کے لوگ قریب ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں مدد ہو کر نمازوں کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، ماں باپ کے ادب و احترام کو چھوڑ کر، بچے کی شفقت چھوڑ کر، علماء کی قدر کو چھوڑ کر، مسجدوں سے دور ہو کر اور گاؤں سے دور ہو کر جنگلوں میں زندگی گزارنے لگے اور سوچے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ یہ نہیں، بلکہ انہی میں رہ کر اللہ ہوتے ہیں، انہی میں رہ کر۔ بہت سے لوگ ہمارے اور آپ کے سامنے آج سے چند دن پہلے بھی موجود تھے، اب نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن میں بھی نہ رہیں، آنے والے ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے۔ اس جمعرات کے دن سربراہ آتے ہیں جس میں ملک الموت جو ہوتے ہیں فرشتے، جو تمام فرشتے جو اس طریقے کے ہیں ان کے سامنے رجسٹر دے دیا جاتا ہے، اس سال میں مرنے والوں کا نام پیش کر دیا جاتا ہے، ان کا رزق پیش کر دیا جاتا ہے، جو بچہ پیدا ہونے والے ہیں ان کا رجسٹر پیش کر دیا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں پیش کر دی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ میرا آغاز جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزہ دار ہوں، روزے
से क्या करते थे। हमें भी चाहिए कि अपने आमाल को दुरुस्त करें ताकि अल्लाह के सामने जब रजिस्टर पेश हो तो हमारा आमाल भी साफ सुथरा चुके में बगैर गुनाह बगैर खतरे के हो। और उसके लिए क्या है कि अल्लाह की यहाँ एक मर्तबा भी हासिल हो जाए, सच्चे दिल से अपने जितने भी गुनाह किए जिंदगी में नदामत के आंसू बहा दे, माफी तलब करे, तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह उस रात में बख्श देगा। जन्नत के परवाने, जन्नत के नगमे और जन्नत के चेहरे जो होंगे वो हमारे लिए हैं। अगर हम उसकी तमन्ना करते हैं जन्नत में जाने की, अल्लाह के हबीब ने फरमाया जब जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। अगर उस जन्नत में जाने की तमन्ना है तो अपने गुनाहों को छोड़कर आने वाली रातों में हम इबादत में गुजारे, रियाजत में गुजारे और वो काम करें जिससे अल्लाह का हबीब राजी हो। खेलों में नहीं, पटाखों में नहीं, घूमने में नहीं, ऐश करने में नहीं, खेलने कूदने में नहीं, मस्जिदों में जाकर दुनियावी बात करने में नहीं, बल्कि इबादत में गुजारो। इबादत में यही अल्लाह चाहता है, यही अल्लाह का हबीब चाहता है, यही मुसलमानों को करनी चाहिए। इसके अलावा जो काम है जो अपनी तरफ से करिए कि जाना है और पूरी रात जागना इबादत समझिए, जाने की जरूरत नहीं। उतने देर ही जाके जब तक इबादत में मजा आ जाए, इबादत में लज्जत मिलता हो, वही अल्लाह को महबूब है, वही अल्लाह को पसंद है। जो बंदा शौक के साथ, रग़बत के साथ, दिलचस्पी के साथ, दिलजमी के साथ अपने आप को अल्लाह के सामने सरकार में पेशानी रखकर समझता हो कि अल्लाह के कदमों में मैंने सर रख दिया है, वही बंदा अल्लाह को महबूब है, अल्लाह को पसंद है, उसी की मग़फ़िरत होती है। लेकिन जो बंदा इस तरीके से नहीं करता उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। फरमाया कुछ लोग वो है इस रात में उसकी बख्शिश नहीं होती। फरमाया वो शख्स जो शराब का आदी हो उसकी मग़फ़िरत नहीं की जाती है। शराबियों को चाहिए, शराब पीने वाले को चाहिए उस रात के आने से पहले पहले तौबा कर ले कि अल्लाह मैंने अब तक जो शराबें पी हैं, जो हमने गुनाह किया है, ए अल्लाह माफ कर दे। शराबियों की बख्शिश नहीं। फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों की बख्शिश नहीं होगी। इसी तरह फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज बतलाए हैं उस पर अमल न कर दूसरे पर अमल करता है और उसको सही समझता है तो उसकी भी नहीं होती। फरमाया वालिदैन के नाफरमान, जो वालिदैन के नाफरमानी करने वाले हैं, एक हदीस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क के बाद अगर कोई सबसे बड़ा गुनाह है इस दुनिया में तो वालिदैन की नाफरमानी है। अगर वालिदैन का कोई नाफरमान है, वालिदैन की बात नहीं मानता, वालिदैन की नाफरमानी करता है, उसके सामने बेअदबी से बात करता है, जबकि कुरान कहता है उफ़्फ़िन लकुमा, उफ़्फ़िन न कहो, उफ़्फ़िन न कुमा। जब कहा तो ये हमें चाहिए कि बस उनके सामने अदब से पेश आए, अदब से पेश आए। और हमें चाहिए कि वालिदैन के नाफरमानी करते हैं तो उससे माफी मांग ले, नाफरमानी छोड़ देने को इस्लाम में उनकी भी बख्शिश नहीं। फिर फरमाया जानी जो ज़िना करता हो, फरमाया उसकी भी बख्शिश इस्लाम में नहीं होगी। फरमाया कि वो शख्स जो कता रहमी करता हो, ताल्लुक रिश्तेदारों से छोड़ता हो, फरमाया उसकी भी बख्शिश नहीं होगी। फिर फरमाया मुतकब्बिर जो अकड़ कर चलता हो, होश को दाव दिखाकर चलता हो और अपने आप को समझता हो इस धरती पर हमेशा के लिए मुझे रहना है, कभी खत्म नहीं होना, अकड़ कर मुतकब्बिर बनकर चलता हो, अपने माल का, अपनी औलाद का, अपनी मकान का, अपने दुकान का, अपने कारोबार का, अपने रिश्तेदार का, जिस चीज की अकड़ हो, घमंड हो, तकब्बुर हो, और माया इसकी गर्दन भी नमोर हो जाएगी और इसकी बख्शिश नहीं की जाएगी। इसलिए ऐसा अगर अमल है तो इससे भी हमें परहेज करने की जरूरत है। इस धरती पर हम चलते हैं न धरती को मसल सकते हैं, न रगड़ सकते हैं, न धरती के अंदर स्वाद कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि आजिज़ी से, इंकिसारी से, पस्ता हद पेशानी से इस धरती में हमें आपको चलना होगा। इसलिए कहा मुतकब्बिर शख्स की भी इस शब बरात की रात में बख्शिश नहीं होगी।
इसलिए अपने आमाल को दुरुस्त करना है। कितने लोग हो गए जिनकी बख्शिश नहीं होती है, हर आदमी अपनी गिरबान में छाप कर देखे इनमें से कौन सा अमल मेरे अंदर है। अगर एक भी अमल है तो उस अमल को आज ही छोड़ दिया जाए। अगर हम नहीं छोड़ते उस अमल को, कल आने वाले दिनों में जो दिन आ रहे हैं हमारे और आपकी बख्शिश नहीं होने वाली, नहीं होने वाली। इसलिए अपने आमाल को हम दुरुस्त करें, अपने आमाल को हम बेहतर करें। अपने आमाल को अगर हम सही करेंगे तभी जाकर सारे काम अंजाम हो सकते हैं। अल्लाह ने हमें आपसे मौका दिया है जिंदगी देकर। हम जिंदे हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जुबानों से बोलते हैं, पांव से चल रहे हैं, हाथ से पकड़ रहे हैं, अकल से सोच रहे हैं। ये जिंदगी हमें मिली है। कुछ लोग ऐसे ही थे हमसे पहले, चंद दिन पहले जो जा चुके हैं, कब्र में सो चुके हैं। उनके कब्र के सोने के बाद उनके बदन की लाश को कीड़ों ने खा लिया है। कीड़ों को कीड़ों ने यहाँ तक के उनका वजूद मिल चुका है। कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं, उनके रिश्तेदार नाम नहीं लेते, उनके रिश्तेदार नाम नहीं लेते। वो चले गए, मिट गए, खत्म हो गए। लेकिन हमारे पास मौका है अपने मौके को बेहतर कर कर, अपने आमाल को दुरुस्त कर कर अपने रब को राजी करने का ये मौका है। ये दिन जो आ रहा है रब को राजी करने वाला, अपनी इबादत को कबूलियत के मंजिल तक पहुंचाने वाला। जो जिंदे हैं वो कर सकते हैं, जो मुर्दे हैं वो नहीं कर सकते। वो तो चले गए करना जो करना था। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने आमाल को दुरुस्त करके जब जिंदगी हयात आती है उस वक्त तक चाहिए कि अपने आमाल को इस तरीके से करें कि मेरा रब, मेरा खालिक, मेरा राज़िक मुझसे राजी हो जाए, मेरा महबूब मुझसे राजी हो जाए। जब आदमी के अंदर अल्लाह की मोहब्बत होती है, अपने हबीब की मोहब्बत होती है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में होती है, तो फिर आदमी हर वो काम करता है जिससे मेरा रब खुश हो, मेरा महबूब खुश हो। अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, नबी की मोहब्बत होनी चाहिए। दुनिया का एक आशिक जो ऐसा इश्क होता है जो फानी होता है, अगर किसी पर फरिश्ता होता है उसकी हर अदा को कुर्बान होने के लिए तैयार रहता है। रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझता। नबी का मोहब्बत का दावा करने वाला उम्मती कैसा है। अल्लाह का नबी बुला रहा है, आओ कि नमाज में आंखों में ठंडक के आदत पढ़ लो। लेकिन हम चले गए छोड़कर। फरमाया जुमा कब्रिस्तान जाओ, कब्रिस्तान को भी आबाद करो, वालिदैन चले जाओ, जाके उनके लिए दुआएं मगफिरत करो। हम आराम से खाट भाग से उन्हीं के बनाए हुए मकान पर, उन्हीं की जमीनों के उपज को, उन्हीं के लगाए हुए दुकानों से खाते पीते हैं। लेकिन कभी तौफीक नहीं होती वालिदैन को फातिहा पढ़कर भी बख्शो नहीं होती। चले गए वालिदैन, चले गए, उनके घर पर रहना मजा आ रहा है, उनके लगाए हुए पौधों से खाना मजा आ रहा है, उनके बनाए हुए बिस्तर पर सोने में मजा आ रहा है, उनके दुकानों से आमदनी अच्छी लग रही है। लेकिन उन पर जाकर थोड़ा और इसी तरीके से जाकर नमाज पढ़कर नफली, इसी तरीके से कुछ कुरान पढ़कर उनके लिए हम नहीं बख्शवा नहीं बख्शवा। पैसा दिया है अल्लाह ने, अच्छे बदल नहीं किए तो नहीं करवा पा रहे हैं, गरीबों की इमदाद नहीं कर पा रहे हैं उनके नाम से। रमजान गुजर जाता है, शब बारात गुजर जा रहा है, 12 का 12 महीने गुजर जा रहे हैं और जवान से हम बुढ़ापे में पहुंचा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो जो जिंदे आदमी है उनकी जिम्मेदारी बनती है, अभी आप खोलने की जरूरत है, अकल को खोलने की जरूरत है कि अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी औलाद कैसे हमारे लिए करेगी। इसलिए चाहिए कि अपनी जिंदगी में खुद अच्छे काम कर लें, अपनी औलाद के भरोसे छोड़ कर न जाए कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए फातिहा तुमको पढ़ते रहेंगे, मुझे बख्शते रहेंगे, मेरे लिए बड़ा और बड़ा काम कर देंगे। किसी गरीब नहीं करने वाले। इसलिए अपनी जवानी में, अपनी ताकत में, अपनी कुव्वत में, अपनी माल दौलत से, अपने हाथ से खर्च करके जाइए, सबका जारिया लगा कर जाइए, ताकि आप मरने के बाद आपका लगाया हुआ फल खुद मिले, खुद मिले। उम्मीद ऐसी औलादों से नहीं लगाई जाती, जो औलाद खुद नहीं करती है तो फिर उसकी औलाद उससे भी बदतर निकलेगी। देखते नहीं, लगाता है माँ बाप पेड़ पौधा, लगाते हैं माँ बाप पैसे दौलत और बनाते हैं उस बच्चे को, अपने होने के बाद बच्चा माँ बाप को भूल रहा है।
माँ बाप को ठुकरा रहा है। इसलिए ऐसी औलादों से उम्मीद नहीं लगानी है। अपने आमाल और इसीलिए दुरुस्त करने की जरूरत है, अपने आमाल को बेहतर करने की जरूरत है। तो ये मौका अल्लाह ने उन्हें दिया है जिनकी आंख खुली हुई, जिनकी आंखें बंद हो गई वो तो चले गए करके, अब वो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हमें और आपको ये चीज, जो भी जिंदगी हमारी और आपकी बाकी है, हम उसको सही तरीके से गुजारें और सही तरीके से अमल करें, ताकि हमारा मालिक, हमारा खालिक हमसे राजी हो जाए। मैंने हदीस पढ़ी थी कि मौत एक पुल है जो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से मिला देता है। हम मुमिन हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह के नबी पर ईमान रखते हैं। हमें क्या है कि मरने से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि नेक अमल है हमारे पास। और इसी मुमिन के बारे में फरमाया कि जब ये मरता है तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से मुलाकात कर देता है। ये हदीस है कि बस हम अल्लाह से मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं। एक जगह से दूसरा जगह मुंतकिल होता है इंसान, और दूसरे जगह जाकर इससे अच्छे मकान, इससे अच्छा हर चीज होगा वहां पर। वहां खाना ही खाना है और पखाना नहीं है। जी, खाना ही खाना है और खाना नहीं है। सेहत ही सेहत है, बीमारी नहीं है। जवानी ही जवानी है, बुढ़ापा नहीं है। ऐसी ऐसे खुशी है, खुशी है, गम ही नहीं है। वो जिंदगी है, वैसी जिंदगी है, कभी खत्म होने वाली जिंदगी नहीं है। दुनिया की 50,000 साल वहां का एक दिन बराबर है। ऐसी जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी। वहाँ नमाज नहीं, यहाँ नमाज है। वहाँ कुरान नहीं, यहाँ कुरान है। वहाँ जिक्र नहीं, यहाँ जिक्र है। वहाँ परेशानी नहीं, यहाँ परेशानी है। इसलिए वो जिंदगी के लिए उतनी मेहनत करें जितना हमें वहाँ रहना है। इस जिंदगी के लिए इतनी ही मेहनत करें जितना यहाँ हमें रहना है। यहाँ तो चंद दिन के लिए, कोई नहीं मालूम 60 साल बोलते हैं सब, वो भी रहेंगे, 80 रहेंगे नहीं, मालूम ही नहीं। पैदा हुआ बच्चा मर गया, 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, कुछ नहीं मालूम। इतना सिर्फ मालूम है कि जो पैदा हुआ वो मरेगा, जो पैदा हुआ वो मरेगा, सिर्फ इतना ही मालूम है। जैसे बच्चा पैदा होता है ये समझ चाहिए कि इसको मौत आनी है, चाहे जैसे भी इसकी जवानी हो, जैसे भी इसके बचपने हो, जैसे भी बुढ़ापे हो। ये तो चीज परफेक्ट हो जाती है पैदा होते ही, और दिख भी जाती है कि इसकी मौत यकीनी है, चाहे जितने साल रहते हो। इसलिए जो हमें मालूम है कि मरना है, इस दुनिया को छोड़ना है, तो इस दुनिया को छोड़ने से पहले हम इम्तिहान हॉल में जब आए हैं और बच्चा हमारे सामने आ गया है और बच्चे से पहले बतला दिया गया है कि ये सवाल होंगे, तो हमें चाहिए कि सवाल के जवाब याद कर ले, ताकि जब हम यहाँ से जाए तो बस जो इम्तिहान लेने वाला हो वो हमारे जवाब सुनकर खामोश हो जाए, खुश हो जाए। तो इंशाअल्लाह इसकी कोशिश करेंगे, और जब तक अल्लाह ने हमें हयात दी है इंशाअल्लाह उम्मीद लगाते हैं कि वो काम करेंगे जिससे हमारा मालिक, हमारा खालिक खुश होता हो। अल्लाह के नबी के नाफरमानी वाला काम हम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।